ہوتے جاتا ہے۔ اسی طرح آج بھی ہمارے اس گاؤں کے لیے ان کے مرنے کے بعد بھی آج ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اس وقت اپنی اس قربانی کو نہیں دیتے تو شاید آج ہم یہاں پر جمع ہی نہ ہوتے۔ جیسے ناگرک بھی محترم جناب عباس علی شیخ آج کے ہمارے جلسے کے صدر، آج کی جلسے کے خصوصی مہمان، اس گاؤں کے ہرکل بزرگ گرام پنچایت کے اپ سرپنچ محترم جناب ایوب شاہ پٹیل سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس سے تشریف کریں۔ آج کے اس پروگرام کے نعت اور تقریر اسپیچ کے جج جس کو منتخب کیا گیا ہے ہمارے گاؤں کے مولانا محترم جناب شرافت علی برکاتی صاحب، ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ بھی سامنے تشریف کریں۔ اسکول کمیٹی کے ممبر محترم جناب عبد القادر خان صاحب، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بھی سامنے آئیں۔ اس کے بعد میں اسکول کمیٹی کے دوسرے ممبر محترم جناب آصف مجاہد بھائی کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اس میں سے تشریف لائیں۔ اس کے بعد ہمارے گاؤں کے جیش ناگرک محترم جناب داؤد پٹیل، آج کے ہمارے مہمانوں کے لیے پھر سے ایک بار زوردار ان کا تالیوں سے استقبال کیا جائے۔ تو اس پروگرام کی شروعات سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں۔ میں عثمان شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ جلسے کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله العظيم۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ بہت ہی سہانا ایسا موسم لگ رہا تھا، بہت دنوں کے بعد ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت سننے ملی۔ اس بچے کے لیے پھر سے بہت زوردار تالیاں ہو جائیں۔ اللہ اس کی آواز کو برکت دے اور اس کو اور زیادہ ترقی و ترقی عطا فرمائے۔ آئیے آج جس شخص کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، مرحوم علی شاہ یوسف شاہ پٹیل، جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ان کی بنیاد بنائی گئی اسکول انجمن خردہ المسلمین ہائی اسکول، آج ان کا یوم پیدائش کا دن، اور اس یوم پیدائش کے موقع پر ہم ایجوکیشن ڈے منانے جا رہے ہیں۔
تو آئیے اس عظیم شخصیت کے لیے سب سے پہلے ہمارے پروگرام شروع کرنے سے پہلے اس عظیم شخصیت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے خدمت میں دعائیں مغفرت کی جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو طالب دین آج جس شخص کے نام کے اوپر یاد میں منایا جا رہا ہے وہ ہرکل گاؤں کے عظیم شخصیت تھے، اور انہوں نے جو یہ کام کر کے گئے ہیں، ایک قلعہ یہاں تعمیر کر کے گئے ہیں. اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے خدمات کو قبول فرمائے. جیسے کہ ابھی ڈانگے سر کہہ رہے تھے کہ دنیا میں لاکھوں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ان لاکھوں لوگوں میں کچھ ایسے اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں اپنی یادیں چھوڑ کے جاتے ہیں جسے بھلایا نہیں جا سکتا. ان کی خدمتوں کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے. انہی شخصوں میں جناب حاجی مرحوم علی شاہ یوسف شاہ پٹیل ہیں، جو قوم کو ایک تحفہ دے کر کے گئے ہیں، اور ایسا تحفہ کہ جن سے بچوں کو کامیابی ملے اور بچے آگے بڑھے. حدیث پاک سنیے، اس کے بعد میں مختصر سی میں دعائیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرنے لگے، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میں وہ کون سا کام کروں جس سے میرے والدین کی مغفرت ہو، اللہ اپنے قرب میں اسے جگہ دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوراہے کے اوپر کنواں کھود دو اور اس کنواں کو کے لیے ایصال ثواب کرو کہ میرے والدین کو اس کا ثواب پہنچے. دنیا میں آنے کے بعد میں انسان جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد میں انسان کا اعمال منقطع ہو جاتا ہے. قبر میں جانے کے بعد نہ نماز پڑھ سکتا، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا، کوئی نیکیاں نہیں کر سکتا. لیکن کچھ ایسے عمل ہیں جو دنیا سے وہ کر کے جاتا ہے لیکن آخرت میں اسے پہنچتا رہتا ہے. جیسے کہ مسجد تعمیر کر دینا، مدرسے یا اسکول کی تعمیر کرنا، اور نیک صالح اولاد کو دنیا میں چھوڑ کر کے جانا. ابھی یہاں پہ اسکول ہے، بچے تعلیم حاصل کریں گے، اس کا جو ثواب ہوگا وہ مرحوم علی شاہ یوسف شاہ پٹیل کو پہنچتا رہے گا، اور ان کے جتنے ہم نوا ہیں ان کو بھی پہنچتا رہے گا، تا قیامت تک پہنچتا رہے گا. ابھی وہ بچہ ماشاءاللہ بہترین لب و لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی اگر اس کے ایک الفاظ کو بھی قبول کر لے تو اسی کے صدقے طفیل سے حاجی صاحب کی بخشش ہو جائے. ایک الفاظ کو، پورا قرآن تو الگ بات ہے، جو تلاوت کی تو الگ بات ہے. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے تو حاجی صاحب کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے، اور ان کے ساتھ میں جتنے کندھے میں کندھے لگا کر کے کام کیے ہیں اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف کرے گا. مختصر سی میں دعا کر رہا ہوں، آپ تمام لوگ صرف آمین کہیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار
हाजी मरहूम यूसुफ अली शाह यूसुफ शाह पटेल के गुनाहों को माफ़ अता फरमा, उनके दर्जात को दुगना अता फरमा। या अल्लाह उनको अपने कुर्ब में जगह अता फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी अता फरमा, उनके पोशाक को जन्नती पोशाक अता फरमा। कब्र के अंदर उनको राहत व तसल्ली अता फरमा, करवट पर आराम अता फरमा। परवरदिगार उनके दर्जात को दुगना अता फरमा, उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील अता फरमा। परवरदिगार जो स्कूल को मौला स्कूल की जो तामीर करके गए मौला, इसमें जो कुछ भी यहाँ पढ़ाई होती है परवरदिगार उनको इसका सिला व बदला अता फरमा, उनको जज़ाए खैर अता फरमा। उनके कंधे में कंधे मिलाकर जितने भी लोग काम किए हैं करने वाले हैं मौला, हर एक की उम्र इकबाल में बरकत अता फरमा। उन सबों को भी इनका सिला व बदला अता फरमा, उन सबों को भी परवरदिगार इसका सबक अता फरमा, सिला अता फरमा। परवरदिगार उन सबों की उम्र इकबाल में बरकत अता फरमा। इन बच्चों के भी उम्र इकबाल में बरकत अता फरमा, इल्म लदुनी अता फरमा, हर मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफ़िल अबदानि शिफ़ाइहा व नूरुल अबसारि ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। देखिए अभी मौलाना ने मरहूम अली शाह यूसुफ शाह पटेल इनकी खिदमत में दुआए मग़फ़िरत की है। ऐसे बहुत सारे हजरात दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत अता फरमाए। लेकिन कुछ ऐसे मखसूस खुशखास होते हैं जिनकी मग़फ़िरत बहुत दिनों तक चलते रहती है। ऐसे कुछ काम कर जाएं कि दुनिया जाने के बाद भी उनको याद करती रहे। आज जाकर तकरीबन 10-12 साल होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज उनको हर साल, हर दिन, हर पल उनको याद किया। डे के मौके पर आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। आज जलसे के सदर मोहतरम जनाब अब्बास अली शेख, खुसूसी मेहमान मोहतरम जनाब अय्यूब शाह पटेल और दीगर हमारे स्कूल कमेटी के मेंबरान यहाँ पर तशरीफ रखे हुए हैं। तो आज के दिन भर के प्रोग्राम की यहाँ पर मैं थोड़ा सा खाका पेश करने जा रहा हूँ। आइए हुए मेहमानों का हम यहाँ पर अभी गुलों से इस्तकबाल करने जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर जो कंपटीशन होगी वो नाक बनी होगी, नाक की कंपटीशन होगी। उसके बाद तकरीर का मुकाबला होगा। फिर उसके बाद जूडो और कैरम और चेस के यहाँ पर मुकाबले रखे गए हैं, उसका मुकाबला होगा। उसके बाद दोपहर के लिए बच्चों को खाने के लिए वक्त दिया जाएगा। और उसके बाद जो मखसूस हमारा प्रोग्राम है दोपहर के बाद सवाल जवाब, जिसे प्रश्न मंजूषा क्विज कंपटीशन कहा जाता है, वो यहाँ पर रखा गया है दोपहर के बाद। ये बहुत ही बेहतरीन ऐसा कंपटीशन है जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। आप भी इसको पुरजोश तरीके से देखिए, सुनिए, जवाब दीजिए और अपने इनामात हासिल कीजिए। और आखिर में जिन जिन बच्चों ने इस प्रोग्राम के अंदर या खुसूसी तौर पर अलग अलग कंपटीशन में हिस्सा लिया, उनके इनामात की तकसीम की जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम आज के इस मौके पर आए हुए हमारे मेहमानों का गुलों से इस्तकबाल करने जा रहे हैं। मैं आसिफ मुजाहिर भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि आज के जलसे के सदर मोहतरम जनाब अब्बास अली शेख की खिदमत में गुल देकर उनका इस्तकबाल किया जाए। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। अब्बास अली शेख, शुक्रिया। इसके बाद मैं बाबुल भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि आज के खुसूसी मेहमान मोहतरम जनाब अय्यूब शाह पटेल उप सरपंच हरकत इब्राहिमगंज साहब, इनका भी गुल देकर जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से एक बार बाबुल भाई दरख्वास्त करता हूँ कि स्कूल कमेटी के मेंबर मोहतरम जनाब कादिर खान, इनका भी गुल देकर इस्तकबाल किया जाए। कादिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे पैसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज के जज मोहतरम जनाब शराफत अली बरकाती साहब, इनका भी गुल देकर इस्तकबाल किया जाए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल। मैं नाहिद से दरख्वास्त करता हूँ
कि आसिफ मुजावर का इनका भी गुल देकर इस्तकबाल किया जाए। मैं फिर से नए से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे मोहतरम जनाब दाऊद शाह पटेल इनका भी गुल देकर इस्तकबाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नए से दरख्वास्त करता हूँ कि आज हमारे दूसरे मेहमान स्कूल कमेटी के मेंबर हुसैन शाह पटेल और बाबुल भाई इनका भी गुल देकर इस्तकबाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नए से फिर दरख्वास्त करता हूँ कि स्कूल स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव लड़कियों में से आई है उसका भी गुल देकर आज इस्तकबाल किया जाए। गुल देकर इस्तकबाल किया जाए। और बॉयज रिप्रेजेंटेटिव कौन आई? बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन जो है, आज जो मीटिंग जमाई गई है, जलसा बुलाया गया है, जनाब अली शाह पटेल की उनकी जयंती के लिए मनाया गया है। अली पटेल साहब जो है उनका गांव में नाम तो है, लेकिन साथ ही साथ बड़े गांव में भी आसपास के गांव में भी उनका इतना नाम है कि कोई भी मेहमान हमारे पूछे कि अली पटेल कौन है, तो खुद वो हमें बता देते कि अली पटेल अली पटेल साहब पटेल कौन है। उनकी इतनी कुर्बानी जो है हमारे उर्दू स्कूल के लिए, और स्कूल के लिए भी नहीं बल्कि अंजुमन के लिए भी उनकी कुर्बानी है। जानी माली कुर्बानी दे के उन्होंने हमारे गांव को सजाया है। एक कोहिनूर हीरे के तौर पे हमारे गांव में वो आबाद थे। हमसे भी वो काम लेते थे, हम छोटे थे जब भी, जो भी गांव से आते थे, पहले एसटी थी, एसटी से आना पड़ता था, एसटी से आते थे हम लोग मार्ग पे बैल चलाते थे, उनका जो सामान था उनके घर पे पहुंचाते थे हम लोग सर पे लेके। इतनी वो बड़ी हस्ती थी, उनकी हस्ती की हमें आज याद आती है और याद करना ही है हमें। उसके लिए मैं इतना ही करके आपका कहने के आपके अंदर की जुस्तजू और आपका ये तड़प इस बात का पता चलता है कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ऐसे ही अशखास होते हैं जो कुछ काम खास करके दुनिया से चले जाते हैं। तो आइए और कोई ठीक है। तो मैं अभी मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि सामने की कुछ कुर्सियों पर तशरीफ रखें। सबसे पहले हम यहाँ पर नात ख्वानी का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। एक बार झूम झूम कर दर्शन पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि तेरा
करते तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। मेरे सूने सूने घर में कभी रौनके अता हो। मेरे सूने सूने घर में कभी रौनके अता हो। मैं दीवानी हो गई हूँ, मैं दीवानी हो गई हूँ। तेरी राह तकते तकते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है जो जिंदगानी बाकी है इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है। तेरे मंदिरों से आका, तेरे मंदिरों से आका मैं मरूंगी लड़ते लड़ते। मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। नासे की हाज़री हो कभी आस्था पे तेरे। नासे की हाज़री हो कभी आस्था पे तेरे। कि ज़माना हो गया है, कि ज़माना हो गया है। मुझे आहे भरते भरते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह इनकी आवाज़ को और बरकत अता फरमाए। शब्बीर भाई आगे आइए, आइए। अभी अभी हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हुए हमारे अंजुमन खुद्दाम मुस्लिमीन उर्दू हाई स्कूल के चेयरमैन मोहतरम जनाब रईस पटेल यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। उन्हीं के साथ साथ हरकुल बुजुर्ग केंद्र प्रमुख मोहतरम जनाब विजय भोगले सर भी यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। उसी के साथ साथ इस गांव के नागरिक मोहतरम जनाब शब्बीर सैयद भी यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आज के हमारे केंद्र प्रमुख, जिसे बहुत ही कार्यशील कर्तव्यवान और हर एक का साथ देने वाले ऐसे हमारे केंद्र प्रमुख, जो आज हमारे इस वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं उनका गुलों से इस्तकबाल करने के लिए मैं रईस पर दरख्वास्त करता हूँ उनका गुलों से इस्तकबाल किया जाए। सर खुड़ी सर, जोरदार सर का गुलों से इस्तकबाल किया जाए, जोरदार तालियों से इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आस करता हूं कि हमारे स्कूल कमेटी के चेयरमैन मोहतरम जनाब रईस पटेल का भी गुल देकर इस्तकबाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मैं आसिफ भाई दरख्वास्त करता हूं कि मैं हमारे शब्बीर सैयद इनका भी गुल देकर इस्तकबाल किया जाए। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्कूल के सदर मुदर्रिसा
मोहतरम जनाब नसरी मैडम का भी मैं रईस पढ़े दरख्वास्त करता हूँ, उनका भी गुल देकर इस्तकबाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ पटेल जिनकी याद में आज हम ये एजुकेशन डे मनाने जा रहे हैं, तो आज के दिन भर के प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग कंपटीशन में हिस्सा लिया। मेहंदी कंपटीशन था, ड्राइंग, कलरिंग कंपटीशन, और आज नाच का कंपटीशन है, उसके बाद तकरीर का कंपटीशन है, फिर उसके बाद खेल के कंपटीशन है, जूडो, कैरम और चेस का, और उसके बाद आखिरी दोपहर में क्विज कंपटीशन रखा गया है। तो आज हमारे इस आए हुए खुसूसी मेहमान मोहतरम जनाब केंद्र प्रमुख साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आज के इसके मौके पर हमारे लिए अपने ज़रीन ख्याल पेश करें। आजच्या या सुंदर कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष, त्यानंतर संस्थेचे प्रमुख रईस जी पटेल, त्यानंतर संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, या गावचे सर्व ग्रामस्थ, मुख्याध्यापिका मॅडम, सर्व शिक्षक आणि आपण सर्व उपस्थित विद्यार्थी, आज 15 सप्टेंबर आपल्या अंजुमन संस्थेतील जे संस्थापक आहेत त्यांची आज जयंती आहे आणि या जयंतीच्या निमित्ताने आपण एज्युकेशनल डे साजरा करतो। सर्वप्रथम या संस्थेचे शिक्षण घेणारे सर्व विद्यार्थी, सर्व प्राध्यापक असतील किंवा अगदी शिपाईपासून सगळे जे आहेत, ज्यांना ज्यांच्यामुळे संधी मिळाली त्या सर्वांना मी आजच्या दिनी खूप खूप शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे 15 सप्टेंबर हा मौलाना आझाद आपले शिक्षण मंत्री यांचाही जन्मदिन आहे आणि तो शासकीय शिक्षण दिन म्हणून साजरा केला जातो। आणि योगायोग असा आहे, आपल्या संस्थेचे जे आदरणीय अलिशा पटेल आहे त्यांचंही आज जयंती आहे आणि तुम्ही त्यानिमित्ताने एज्युकेशनल डे म्हणून साजरा करता, म्हणजे हा खरोखरच दुग्ध शर्करा योग आहे। आज राष्ट्रीय जागतिक अभियंता दिन पण आहे आणि जागतिक लोकशाही दिन पण आहे। या सर्व दिनाच्या निमित्ताने मी आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे तुमची संस्था माझ्यासाठी एक आदर्श संस्था आहे। तुमच्या संस्थेचे जे चेअरमन असतील किंवा सर्व पदाधिकारी असतील ते समर्पित भावनेने या ठिकाणी काम करतात। अगदी कोणताही मनात अभिमान न बाळगता, परंतु स्वाभिमानाने निश्चितच चांगलं कार्य या संस्थेत होत आहे। गेले कित्येक वर्ष स्थापनेपासून त्या संस्थेचं जे कार्य आहे, मग तो 10वीचा रिझल्ट असो, विज्ञान प्रदर्शन असो किंवा इतर काही ऍक्टिव्हिटीज असो, शासकीय कोणत्याही कार्यक्रमात ही संस्था मागे नसते, हायस्कूल मागे नसतं, हे सांगताना मला मुद्दाम आनंद होतोय। या संस्थेच्या ज्या मुख्याध्यापिका आहेत बेग मॅडम, नसरीन बेग मॅडम आणि त्यांचे सर्व सहकारी आहेत, अगदी राष्ट्रीय कार्यक्रम असो, नवभारत साक्षरता, त्यांचं रजिस्ट्रेशन करण्यापासून अगदी ज्या ज्या शासकीय योजना येतात कोणत्याही, त्यामध्ये हे हायस्कूल निश्चितच पुढे असतं, त्याचा मला निश्चित अभिमान आहे। आणि या शाळेत जे संस्कार दिले जातात तुम्हा मुलांना, ते खरोखरच तुमच्या पुढील आयुष्यात एक भावी नागरिक घडण्यासाठी ते निश्चितच उपयोगी ठरतील। तुम्हा मुलांनी याचा निश्चितच चांगल्या रीतीने फायदा करून घ्यावा, कारण केवळ पुस्तकी ज्ञानापेक्षा इतर, आता सरांनी ते डांगे सरांनी सांगितलं आपल्या प्रस्तावनेत किंवा सूत्रसंचालन करताना की वेगवेगळ्या या निमित्ताने आम्ही कॉम्पिटिशन घेतल्या, मग ती रंगोली असेल, मेहंदी असेल, वक्तृत्व स्पर्धा असेल, आज दिवसभर त्या निमित्ताने वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशन या ठिकाणी होणार आहे। सांगण्याचा हेतू एवढाच, केवळ पुस्तकी शिक्षण न देता ही संस्था विविध म्हणजे अष्टपैलू आपले विद्यार्थी घडावेत, समाजातील एक चांगला उत्तम नागरिक म्हणून त्याने जगावं, यासाठी संस्था ही शिक्षण देते। मी काय आजच्या कार्यक्रमाचा पाहुणा वगैरे नाही, माझं कर्तव्य आहे, ड्युटी आहे की माझ्या कार्यक्षेत्रातील एक चांगल्या शाळेत उपक्रम, पण त्याचबरोबर आज महत्त्वाची या ठिकाणी मीटिंग पण आपल्या सर्वांना माहिती आहे की सेवा पंधरवडा 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत सेवा सप्ताह साजरा केला जातो आहे। पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या जयंतीपासून अगदी आपले महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीपर्यंतचा जो कालावधी आहे
तो सेवा पंधरवडा आणि समृद्ध पंचायत समृद्ध गाव अभियान म्हणून 17 तारीखला ग्रामपंचायतीमध्ये सुद्धा मोठा कार्यक्रम होणार आहे. त्या कार्यक्रमालाही सुद्धा तुम्हा सर्वांना मी इन्व्हाइट करतो. आज या ठिकाणी सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांची मी सभा बोलावलेली आहे. शाळा तिथे दाखला हा जो उपक्रम आहे अगदी शासकीय किमतीत म्हणजे 69 रुपयामध्ये जातीचा दाखला आणि वय दिवस दाखला जो पुढे जाऊन सर्वांना अत्यावश्यक असतो, हा शाळेत या ठिकाणी येऊन तहसील कार्यालय आपल्याला देणार आहे. त्याचा फायदा पण तुमच्यापर्यंत तो मेसेज तुमच्या सरांच्या माध्यमातून पोहोचलेला असेल तर त्यासाठी सुद्धा मला जाणं गरजेचं आहे. आजच्या कार्यक्रमासाठी दिवसभर मी उपलब्ध आहे. कार्यक्रम या ठिकाणी आत्ता जरी मी या ठिकाणी जाणार असलो सभेसाठी तरी दिवसभरात ज्यावेळी मला वेळ मिळेल त्यावेळी निश्चितच मी या कार्यक्रमात हिस्सा घेईन. मला याच ठिकाणी आज बोलून संस्थाध्यक्ष हरीश पटेल किंवा आजच्या कार्यक्रमातले माननीय व्यक्ती आणि 2 शब्द बोलण्याची आणि तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी खूप खूप त्यांना धन्यवाद देतो. आणि तुम्हा सर्व मुलांना हे आजचा जो शिक्षण दिन आहे त्याचबरोबर येणारं जे शैक्षणिक वर्ष होऊ घातलेलं आता जस्ट 3 महिने झाले सुरुवात झालेली आहे त्या याच्यात विविध क्षेत्रांमध्ये तुम्हाला चांगलं सुयश मिळो म्हणून अल्लाहकडे प्रार्थना करतो आणि तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद देतो. जय हिंद. हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर. खरोखर सर आपले हे शब्द आम्हाला पुढे जाण्यासाठी प्रेरणा देतात. कारण आपण या कार्यक्रमामध्ये जे आमची संस्थाबद्दल आपण जे प्रशंसाचे शब्द इथं व्यक्त केलेलं आहे ते आमच्यामुळे नाही पण हे बसलेले जे पदाधिकारी आहेत यांची मेहनत आहे, यांचा वेळ आहे, ज्यामुळे आज आमची ही संस्था इतकी पुढे आज जात आहे. तर खरं सर आपण आमच्यासाठी इतका मौल्यवान वेळ दिला त्याबद्दल आपले आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. दिवसभरासाठी आपण उपलब्ध आहात तर कधी पण येऊ शकतो. सरांसाठी जोरदार परत एकदा काढा. इसके बाद मैं आज आए हुए हमारे दूसरे मेहमान मोहतरम जनाब फकीर अहमद पटेल साहब का भी गुल देकर इस्तकबाल करने के लिए मैं रईस पटेल से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे फकीर अहमद भाई का भी गुल देकर इस्तकबाल किया जाए. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं नाहिद सर से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे मोहम्मद खान का इनका भी गुल देकर इस्तकबाल. बहुत बहुत शुक्रिया. बोलने नाक चालू थी. मैं नायब से दरख्वास्त करता हूँ कि आगे की कार्रवाई शुरू करें. शुक्रिया सर. नात का भी दूसरा नंबर है फातिमा हारून रशीद खान, वो आए और अपनी नात पेश करें. मुस्कुराती थी हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी. अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से. मुबारक हो शाहे हर दोस्त रात शरीफ आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए. मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम. मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैन, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिया व मिन आज़मीन.
मुस्तफा का हुस्न कैसा था, जमीनों आसमानों पर कोई मिसाल ना मेरी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दरूदन पर सलामुन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है, वही तो हर्ष के मैदान में सबकी शिफात है। शिफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दोस्तगिरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलामी आमिना के लाले महबूब सुबहानी, सलामे फक्र मौजूदात फक्रे नू इंसानी। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खलगते शहनी। तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तो नहीं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शुक्रिया। फरामुल्ला इसके बाद आए और अपनी नात पेश करें। बनी है वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वशम्स दुआ चेहरे अलवर की झलक है। वल्लैल सजा हजरत की लखत है। आलम को जिया नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरा, मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रा। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरा, मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रा। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। शुक्रिया। उस्मान जी वो आए और अपनी नात पेश करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کی ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن آجم. نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن آجم. محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن آجم. نہ کوئی درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے, وہی غمخوار امت ہے. وہی سردار عالم ہے, وہی غمخوار امت ہے. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن آجم. سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا بچھونا تھا. سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی, سلام سلام محبوب سبحانی. سلام آمینہ کے لال میرے محبوب سبحانی. سلام فقر موجودہ فقر نو انسانی. تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن آجم. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ.
मैं रईस भाई से दरख्वास्त करता हूं कि आज के इस मौके पर अपनी ख्यालात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। सब में पहली बात तो आज का दिन आपको पता ही होगा, वक्त की किल्लत को देखते हुए ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा यहाँ पर। वक्त सबके पास 24 घंटे का ही होता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको भी 24 घंटे ही मिलेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी हो, कलेक्टर हो, पुलिस हो, कमिश्नर हो, 24 घंटे ही मिलते हैं। सब में पहली बात तो यहाँ पे जो केंद्र प्रमुख आए थे उन्होंने आपको बताया होगा कि कितना बड़ा दिन है, 15 सितंबर। इसी दिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद, ये आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री, इसी दिन पैदा हुए थे। इन्हीं की याद में ये एजुकेशन डे मनाया जाता है। बड़ी ही विजनरी पर्सनालिटी थी। इस स्कूल को बनाने के लिए, इस स्कूल को तामीर करने के लिए, इसके फाउंडेशन बोलते हैं, फाउंडेशन के लिए अली शाह यूसुफ शाह पटेल। आपने तस्वीर देखी होगी, एक क्लास 1 लेवल के ऑफिसर थे। हालांकि चाहते तो बम्बई में बहुत कुछ कर सकते थे, बड़े बड़े आलीशान फ्लैट ले सकते थे माशाल्लाह, बड़ी बड़ी BMW, ऑडी ऐसे कार भी ले सकते थे, एक लैविश लाइफ जी सकते थे। लेकिन उन्होंने ये सब सैक्रिफाइस करके, ये सब कुर्बानियां करके ये स्कूल का बुनियाद रखी, ये स्कूल की बुनियाद रखी। और आप सभी खुशकिस्मत हैं कि आज आप मादरी जुबान में, उन्हीं की बदौलत इस तालुके में शायद ये इकलौती हाई स्कूल है कि जहाँ पे आप अपनी मादरी जुबान में तालीम हासिल कर सके। बहुत बड़ी बात है। आपको ये अभी समझ में नहीं आएगी, जैसे आप बड़े बड़े हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि एक मादरी जुबान में सीखने का क्या वैल्यू होता है, क्या फ़ायदा होता है। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा, मेरे पास भी मतलब मिनिमम टाइम है। यहाँ से मेरी तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं है, वो होने के बावजूद भी मैं मतलब यहाँ से अभी फिर रत्नागिरी, वापस रिटर्न, वापस कलेक्टर ऑफिस, तो ये टाइम शेड्यूल बहुत बिजी होता है। लेकिन शायद हमारी ये तादाद भी मुझे कम लग रही है एज़ कम्पेयर टू मतलब गए साल के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम है लेकिन काफ़ी है। आपको इस प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पर हमारे अली खान साहब, अली खान चाचा आए हैं, मैं उनका भी यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ लाए। मैं हमारे बाबुल भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे अली खान चाचा का गुल देकर इस्तकबाल करें। तो ये भी हमारे गांव की एक बुजुर्ग हस्ती है। कई मतलब ये मतलब हमारे जो एवाई पटेल थे, अली पटेल, इनके साथ वाले बोले तो भी चलेगा, तकरीबन उतनी या फिर उनसे 1-2 साल की या फिर ज़्यादा ही एज रहेंगी चाचा की। तो इन्होंने भी ये स्कूल का 90 के आसपास, 1990 में, 91 में, तो 91 में जो आगाज़ हुआ था तो ये उसके विटनेस हैं। आप बड़े खुशकिस्मत हैं। 93 में माशाल्लाह, तो ये उसके मतलब विटनेस है ये सब चीज़ों के। तो इतनी बुजुर्ग हस्ती भी आपके सामने माशाल्लाह आई हुई है आपका हौसला बढ़ाने के लिए। हमारे माशाल्लाह अब्बास चाचा भी हैं। तो ये जितने भी, हम तो मतलब उस टाइम 2-3 साल के भी, 4 साल का था मैं उस टाइम में, तो इतनी सारी बड़े हस्तियों के सामने आपको परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है। तो आप सब को मैं फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा, आपको मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आके परफॉर्मेंस करें। कुछ ही टाइम में हमारे केंद्र प्रमुख भी आएंगे माशाल्लाह, हमारे मौलाना भी हैं, आपको एज ए जज वहाँ पे बैठे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको वंस अगेन आपको बहुत सारी मुबारकबाद, अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दो और इस प्रोग्राम को कामयाब करो। अस्सलाम। शुक्रिया सर। जनाब रईस पटेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार फोन में को आ रहे वक्त यहाँ पर लिया है। अब इसके बाद हमारा स्पीच वाला प्रोग्राम होने जा रहा है। थोड़ा सा मैं एक दुरुस्ती करना चाहता हूँ कि आज 15 सितंबर है, लेकिन एजुकेशन डे हमारे स्कूल में जो मनाया जा रहा है ये 15 सितंबर एवाई पटेल साहब इनकी याद में मनाया जा रहा है। और 11 नवंबर जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का डेट ऑफ बर्थ है, 11 नवंबर, जिसको हम इन द कंट्री एजुकेशनल डे मना रहे हैं। ठीक है।
तो सब थोड़ा सा अपने पास दुरुस्त कर लें। 11 नवंबर है 1888 में वो शख्सियत की पैदाइश है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब हम स्पीच की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले फौजिया आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। मैं अपनी तकरीर का आगाज एक शायरी से करना चाहूँगी। वो इल्म किस काम का जिसमें सलीका ना हो, वो इल्म किस काम का जिसमें सलीका ना हो, इखलाकी तरबियत में ही जिंदगी का अज़्म हो। अजीज़ाने गिरामी, असातिज़ाए किराम और मेरे हमनशीनों की सआदत करती हूँ, और वो है तालीम और इखलाकी तरबियत। तालीम और इखलाकी तरबियत ये एक दूसरे से जुदा नहीं, बल्कि एक सेहतमंद माशरे के लिए तश्कील के लिए लाजिम व मलज़ूम है। तालीम क्या है? तालीम न सिर्फ किताबों को रटना, इम्तिहानात पास करना या डिग्रियां हासिल करना नहीं, बल्कि ये तो महज एक इल्म का हुसूल है। असल तालीम वो है जो इंसानी दिमाग को रोशन करे, इसे कायनात के राज़ों से आशना करे और इसकी सच्चाई से उसे उसक पैदा करे। तरबियत क्या है? तरबियत इस इल्म को इंसानी किरदार का हिस्सा बनाना है। ये हर एक अफराद को सच्चाई, दयानत और इखलाक जैसे औसाफ से आरास्ता करती है। तालीम अगर दिमाग को जला बख्शती है, तो तरबियत रूह को इखलाक से परवान चढ़ाती है। तालीम और इखलाकी तरबियत का गहरा ताल्लुक एक माशरा जहाँ तालीम तो हो मगर इखलाकी तरबियत का फुकदान हो, वहाँ महज एक खतरनाक फर्द बन सकते हैं। इसके पास इल्म की तो ताकत होगी, मगर इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए इसका शऊर नहीं होगा। यही वजह है कि आजकल दुनिया में मादियत और खुदगर्जी का गलबा है, क्योंकि हमने तालीम पर तो तवज्जो दी है मगर इन अखलाकी तरबियत को नजरअंदाज किया है। औलाद की सही तरबियत में वालिदैन का सबसे बड़ा किरदार होता है। वालिदैन को नसीहतें करने की जरूरत नहीं, बल्कि वो अपनी मिसाल कायम कर सकते हैं। जब बच्चा घर में अपने वालिदैन को बड़ों का एहतराम करते देखेगा, सच बोलते देखेगा, तो वह खुद ब खुद इस पर अमल करेगा। सिर्फ वालिदैन ही नहीं बल्कि असातिज़ा और माशरे के तमाम अफरादों की ये जिम्मेदारी है कि नौजवान नस्ल को अखलाकी तरबियत पर तवज्जो दें। शुक्रिया। बहुत खूब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन हज़रात, मौजूद असातिज़ा इकराम, तुलबा व तालिबात और मेरे अजीज साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम यहाँ 15 सितंबर एजुकेशनल डे मनाने के लिए जमा हुए हैं। इसलिए आज तकरीर का मुकाबले में मुझे तालीम और अखलाकी तरबियत कामयाब ज़िंदगी की कुंजी इस उन्वान पर अपने ख़यालात पेश करने का मौका मिला है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ने इसे अक्ल और शऊर से नवाजा है। तालीम हासिल करना सिर्फ एक पढ़ाई करना या फिर बुकों पर रट्टा मारना ये नहीं, बल्कि अपने अखलाक, अपनी तरबियत को भी सुधारना है। तालीम से इंसान जहालत की ज़िंदगी को छोड़कर तालीम से जहालत से नजात मिलती है, शऊर अता करती है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। माशरे में तालीम और तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम से हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन माशरे के लिए वो अभी भी एक बोझ बनकर रह जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने अखलाक की तामील करने के लिए मबूस हुआ हूँ। यानी हमारे नबी ने भी तालीम के साथ साथ
दीनी अखलाक और दुनियाई अखलाक दोनों पर जोर दिया। आखिर में मैं अपनी तकरीर शेर के साथ खत्म करती हूँ। तालीम और अखलाक के नूर के साथ यही है कामयाब जिंदगी का राज है। निकट फातिमा अपनी तकरीर पेश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है तालीम और अखलाकी तरबियत कामयाब ज़िंदगी की कुंजी। ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कामयाब हो, खुशियों से भरपूर हो, इज्जत व मकाम मिले और लोग हमें याद करें। मगर सवाल ये है कि क्या कामयाब ज़िंदगी सिर्फ दौलत शोहरत है? नहीं, कामयाब ज़िंदगी सिर्फ हकीकत में है। एक कामयाब इंसान वो है जो दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद हो, जो वक्त की कदर करे और जो अपने दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद हो, जो वक्त की कदर करे और जो अपनी मेहनत व खुलूस और ईमानदारी से ज़िंदगी के सफ़र को तय करे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। यानी अल्लाह ताला ने कामयाबी को फ़कत किस्मत ही नहीं कहा है, बल्कि कोशिश और मेहनत को भी कामयाबी की कुंजी दिया है। मैं अपनी तकरीर खत्म करने से पहले एक शेर कहना चाहूँगी। कामयाबी फ़कत शोहरत या दौलत का नाम नहीं, कामयाबी फ़कत शोहरत या दौलत का नाम नहीं, सुकून दिल और नियत साफ हो, यही सबसे बड़ा इनाम है। शुक्रिया। जब भी हम कलाम होते हैं तो राह के पत्थर भी गुलाम होते हैं। जब भी हम कलाम होते हैं तो राह के पत्थर भी गुलाम होते हैं। तहजीब ईमान ने सिखाया है हमें, तहजीब ईमान ने सिखाया है हमें। हम कुछ कहने से पहले सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामाईन, आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ वो है तालीम और अखलाकी तरबियत कामयाब जिंदगी की कुंजी। दुनिया में हर एक इंसान ये चाहता है कि वो कामयाब हो, इज्जत पाए और दूसरों के लिए मिसाल बन सके। लेकिन असल सवाल ये है कि तालीम और अखलाकी तरबियत कामयाब जिंदगी की असल कुंजी क्या है। सबसे पहली कुंजी है ईमान और मेहनत। बगैर ईमान के इंसान की मंजिल अधूरी है और बगैर मेहनत के ख्वाब हकीकत नहीं बन सकते। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। दूसरी कुंजी है ईमानदारी और सच्चाई। अगर इंसान झूठ, धोखा, फरेब को अपना ले तो वक्ती तौर पर फायदा जरूर है, देर पा कामयाबी सिर्फ सच्चाई और दयानदारी में है। तीसरी कुंजी है इल्म और तालीम। तालीम वो चिराग है जो अंधेरे को दूर करता है और इल्म के बगैर इंसान अंधेरों में भटकता रहता है, मगर इल्म और तालीम इस शख्सियत को निखारते हैं। चौथी कुंजी है वक्त की पाबंदी। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो हमेशा तरक्की की राह पर चलते हैं। वक्त जाया करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। पांचवी कुंजी है अच्छे अखलाक और दूसरों की खिदमत। कामयाब वही है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे और दूसरों के दिलों में जगह बनाए। सामाईन, कामयाबी दौलत, शोहरत या ओहदे का नाम नहीं, बल्कि असल कामयाबी ये है कि इंसान ईमान के साथ, अच्छे अखलाक के साथ और इल्म और मेहनत के साथ जिंदगी गुजारे। यही कामयाब जिंदगी की असल कुंजी है। मैं एक शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करना चाहूँगी। रखौसला बुलंद वो मंजर भी आएगा, रखौसला बुलंद वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मुसाफिर, थक कर ना बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। शुक्रिया। बहुत खूब नीलम। उनके बाद थोड़ा सा ये प्रोग्राम जरा सा हम चेंज कर रहे हैं। मैं शब्बीर भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात पेश करें। शब्बीर से ये कहा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह।
मदीने में बुला, ऐ रहने वाले सब्ज गुंबद के हम बदों को भी निभा, ऐ रहने वाले सब्ज गुंबद के हो जाए डर की, के हो जाए डर की जियारत हमें भी, कि हो जाए डर की, या हबीबी या रसूल अल्लाह, कि हो जाए डर की जियारत हमें भी, कभी याद कीजिएगा आका हमें भी, नहीं रखा महरूम, नहीं रखा महरूम अब तक किसी को, बुलाया है दर पर आका तुमने सभी को, या नबी आपका दर सुहाना, या नबी आपका दर सुहाना, अपने दर पे हमें भी बुलाना, अपने दर पे हमें भी बुलाना, या नबी आपका दर सुहाना, या नबी आपका दर सुहाना, सरकार मदीने, सरकार मदीने में बुला, क्यों नहीं लेते दामन में हमें अपने छुपा, क्यों नहीं लेते, मैं आऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, मैं आऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, घर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं है, या नबी आपका दर सुहाना, या नबी आपका दर सुहाना, अपने दर पे हमें भी बुलाना, अपने दर पे हमें भी बुलाना, या नबी आपका दर सुहाना, या हबीबी या रसूल अल्लाह, सुनहरी सुनहरी ओ रोज़े की जाली, सुनहरी सुनहरी ओ रोज़े की जाली, नहीं याद जिसकी कभी जाने वाली, नहीं याद जिसकी कभी जाने वाली, बहुत सब्ज़ गुंबद का चर्चा सुना है, बहुत सब्ज़ गुंबद का चर्चा सुना है, किसाई ने जिसके ज़माना पला है, या नबी आपका दर सुहाना, या नबी आपका दर सुहाना, अपने दर पे हमें भी बुलाना, अपने दर पे हमें भी बुलाना, या नबी आपका दर सुहाना। शुक्रिया। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपके इस मौके पर हमारे शब्बीर भाई को भी यहाँ पर जोश आ गया कि मैं भी कुछ नाच सुनाऊं।
कि आपके सुनते सुनते उनको भी ये लगा कि मैं भी अपने जो कलाम है वो आपके सामने पेश करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक समा बांध दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हुए मेहमानों का हम फूल देकर इस्तकबाल करने जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए अंजुमन रहमानिया ब्रांच ऑफिस के सदर, इसी स्कूल के साबिक स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट मोहतरम जनाब सद्दाम नाइक का मैं आसिफ भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि फूल देकर इस्तकबाल किया जाए। सद्दाम नाइक। शुक्रिया। दूसरा उनके साथ आए हुए रिजवी क्रिकेट क्लब हरको बुजुर्ग के मेंबर मोहतरम जनाब शाहरुख शेख, इनका भी फूल देकर इस्तकबाल किया जाए। हेलो। अभी भी जिन हजरात का यहाँ पर इस्तकबाल किया गया, मैं उनसे मुताल्लिक थोड़े अपने कलमात यहाँ पर पेश करने जा रहा हूँ। हाल ही के 10-15 दिन पहले इन्होंने अपने रिजवी क्रिकेट क्लब हरकुल बुजुर्ग की तरफ से अपने स्कूल के पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को अपनी क्रिकेट क्लब की तरफ से बयाज़े तकसीम किए थे फ्री में। तो मैं इनका यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज फिर से एक बार उन्हें यहाँ पर हम बुलाया गया है कि आज उन्हीं के हाथों से दीगर जो बच्चे हैं उनको भी उन्हीं के हाथों से जो उन्होंने तकसीम किए थे बयाज़े, आज उन्हीं के हाथों से फिर से एक बार तकसीम करने के लिए कहूँगा। तो मैं सबसे पहले मंचे गांव से आए हुए तस्कीन आइए, मैं सद्दाम नाइक से दरख्वास्त करता हूं कि अपने हाथ से ये बयाज़ों की तकसीम की। जोरदार इनके लिए तालियों से इनका इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं नांदगांव के तमीमा बोबड़े आइए, शाहरुख भाई से दरख्वास्त करता हूं कि अपने हाथों से ये बयाज़ों की तकसीम की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद फिरदौस शेख आइए हुमरट से। फिरदौस शेख, मैं बाबुल भाई से दरख्वास्त करता हूं कि अपने हाथों से ये बयाज़ों की तकसीम की जाए। रिजवी क्रिकेट क्लब हरकुल बुजुर्ग की तरफ से ये फ्री में बच्चों को बयाज़ों की तकसीम की गई है। जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अली खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने हाथों से ये तकसीम करें। धालोली से कौन है? मंचे से आइए। और मुनज्जा बाबुड़े आइए। मुनज्जा बाबुड़े, मुनज्जा सोलकर। फराम मुल्ला आइए। मैं कादिर खान से दरख्वास्त करता हूँ अपने हाथों से ये फराम मुल्ला। और अनीस आइए, अनीस सोलकर। मैं बच्चा से दरख्वास्त करता हूँ कि ये अपने हाथों से बच्चों को तकसीम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फकीर अहमद भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने हाथों से ये तकसीम करें। मुदस्सर सोलकर। बहुत बहुत शुक्रिया। हो गए। आइए आप ठहरिए, 20 मिनट है। हेलो, इधर आओ, इधर आओ, सामने। इधर 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 बैग दिखाओ।
शुक्रिया। अभी भी हम यहाँ पर तशरीफ लाए हुए इस गांव के हमारे मोहतरम जनाब अब्दुल हमीद शाह पटेल, मैं बाबुल भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि उनका गुल देकर इस्तकबाल किया जाए। हमीद इधर, हमीद इधर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद आगे की तकरीर का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। तो मैं सबसे पहले इसके बाद जिसका नंबर है बरीरा मुंशी, मोहतरम असातिज़ा-ए-किराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का मौजू है तालीम और अखलाकी तरबियत, कामयाब जिंदगी की कुंजी। इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है, लेकिन ये शर्फ इसे सिर्फ जिस्मानी ताकत या माल बदौलत की वजह से नहीं मिला। ये शर्फ इसे तालीम और अखलाक की बदौलत हासिल हुआ है। तालीम इंसान को इल्म अता करती है और अखलाकी तरबियत इसे इंसानियत का ज़ेवर बख्शती है। तालीम के हैं सभी दर्जे, मगर याद रहे अखलाक के ज़ेवर से है जिंदगी की राह महकने वाली। अब सवाल ये है कि तालीम और अखलाक साथ साथ क्यों जरूरी है। तालीम हमें डिग्री देती है, मुलाजिमत देती है, दुनियावी कामयाबियां अता करती है, लेकिन अगर इस तालीम के साथ अखलाक ना हो तो वो तालीम मुआशरे के लिए नुकसानदार साबित हो सकती है। दुनिया के बड़े मुजरिम और फितना पर्दाज भी अक्सर तालीम याफ्ता थे, लेकिन उनके पास अखलाकी तरबियत न थी। हज़रात, इस नुक्ते को समझाने के लिए मैं एक हकीकी वाक़या पेश करती हूँ। ये वाक़या हमारे साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम से मुताल्लिक है। वो एक अजीम साइंसदां थे, उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक बार जब उनका एक रॉकेट तजुर्बा नाकाम हुआ तो इन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली, अपने किसी साथी को मौरूद इल्जाम न ठहराया। लेकिन जब अगला तजुर्बा कामयाब हुआ तो इन्होंने दुनिया के सामने अपनी टीम को आगे कर दिया और कहा ये सब इनकी मेहनत का नतीजा है। यह तालीम और अखलाक का इम्तिजाज। तालीम ने इन्हें अजीम साइंसदां बनाया और अखलाकी तरबियत ने इन्हें दुनिया के दिलों में जगह दी। मेरे अजीज साथियों, याद रखना, अगर हमारे पास इल्म हो मगर हम में आजिज़ी ना हो, बड़ों की इज्जत ना हो, छोटों से शफकत ना हो, तो वो इल्म अधूरा है। इल्म अगर ज़ेवरे अखलाक से खाली हो जाए तो वो शमशीर है जो कौम को काट दे आखिर। अब हमारे स्कूल के बानी AY पटेल साहब की कुर्बानी और सोच पर नजर डालिए। उन्होंने ये दर्जगाह इसलिए कायम की कि इस इलाके के बच्चे भी तालीम से महरूम ना रहे। उनका ये ख्वाब था कि इस स्कूल से जाने वाला हर बच्चा सिर्फ पढ़ा लिखा ही ना हो, बल्कि एक बाअखलाक और बाकिरदार शहरी भी बने। इनका यही ख्वाब आज हमारे लिए रहनुमाई है। मेरे अजीज साथियों, याद रखो, कामयाब जिंदगी का मतलब सिर्फ अच्छी मुलाजिमत या ज्यादा पैसा नहीं है। कामयाबी वो है कि लोग आपको इज्जत से याद करें, आपके अखलाक की मिसालें दें, आपके किरदार से मुआशरा रोशन हो। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आइए अहद करें कि हम सब तालीम के साथ साथ अपनी अखलाक को भी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और बानिए मदरसा AY पटेल साहब की कुर्बानियों को और ख्वाबों को हकीकत बनाएंगे। शुक्रिया। मैं फातिमा खान को आवाज देता हूँ, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरम असातिज़ा-ए-किराम और मेरे प्यारे साथियों, आज का मेरा मौजू है तालीम और इखलाकी तरबियत, कामयाब जिंदगी की कुंजी। तालीम हमें पढ़ना लिखना सिखाती है, लेकिन इसका असल मकसद सिर्फ नौकरी पाना या इम्तिहान में अच्छे नंबर लाना नहीं है। तालीम का असल कमाल ये है कि वो इंसान को अच्छे इखलाकी और बुनियादी इक़्तिदार सिखाती है। जब हम तालीम हासिल करते हैं तो हमें किताबी इल्म नहीं मिलता, बल्कि हम ये भी सीखते हैं कि
सच बोलना सबसे बड़ी बहादुरी है। ईमानदारी इंसान का सबसे बड़ा जिद है। वक्त की पाबंदी कामयाबी की पहली शर्त है। वालिदैन की खिदमत और असातिज़ा का एहतराम ज़िंदगी की असल बरकत है और दूसरों के साथ हमदर्दी माशरे को जन्नत बना देती है। यही वो इखलाकी कदरें हैं जो एक इंसान को तालीम बाकद्र से कामयाब इंसान बना देती है। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी, तालीम के साथ अगर हम सच्चाई, ईमानदारी, एहतराम और खिदमत जैसी कदरें अपना ले तो दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब होने से रोक नहीं सकती। आखिर में मैं एक शेर के साथ अपना तकरीर ख़त्म करना चाहूँगी। जिसके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिसके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनके तराशने से पत्थर भी पिघल सकते हैं। शुक्रिया। बहुत खूब। इसके बाद आलिया तैयब खान को मैं आवाज़ देता हूँ, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। मोअज़्ज़िज़ सामीन, असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीम से बनती है इंसान की पहचान, तालीम से बनती है इंसान की पहचान, अखलाक से मिलती है दिलों को जान। आज मैं आपके सामने एक निहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ और वो है तालीम और अखलाकी तरबियत, कामयाब जिंदगी की कुंजी। तालीम इंसान के लिए वो रोशनी है जो जहालत के अंधेरों को ख़त्म कर देती है। तालीम के बगैर इंसान अंधा है, वो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ तालीम ही काफ़ी नहीं, बल्कि अखलाक भी होना लाजमी है। अगर अखलाक न हो तो इल्म इंसान को गुमराही, तबाही की तरफ भी ले जा सकता है। असातिज़ा इकराम और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किताबी इल्म के साथ साथ सच बोलना, बड़ों का अदब करना, छोटों पर शफकत करना, ईमानदारी और नेक सीरती जैसे औसाफ भी सिखाए। यही औसाफ जिंदगी में, दुनिया में इज्जत और आखिरत में निजात अता करते हैं। हमारा दीन इस्लाम भी यही दर्ज देता है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। इसलिए हकीकी कामयाबी तरबियत इल्म और मेरा दीन इस्लाम भी यही दर्ज देता है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हो। और असली कामयाबी सिर्फ दौलत के हुसूल का नाम नहीं, या बल्कि हकीकी कामयाबी वो है जो जिंदगी और आखिरत में निजात अता करे। अब आखिर में यही कहूँगी कि इल्म और अखलाकी तरबियत दोनों लाजिम व मलजूम है और यही एक कामयाब जिंदगी की असल कुंजी है। इल्म अमल और अखलाक का संग है कामयाबी, इल्म अमल और अखलाक का संग है कामयाबी। यही है इंसान की असल और यही है जिंदगी की खूबी। शुक्रिया। शुक्रिया। इसके बाद जोया अनवर शेख को मैं आवाज़ देता हूँ कि आए वो अपनी तकरीर पेश करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मेरी तकरीर का मौजू है तालीम और अखलाकी तरबियत, कामयाब जिंदगी की कुंजी है। तालीम और तरबियत ऐसे दो लाजमी अनासिर हैं जो किसी फर्द की शख्सियत की तामीर और माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। तालीम से मुराद इल्म का हुसूल है, जबकि तरबियत से मुराद अखलाकी इक़दार, आदाब और समाजी जिम्मेदारियों का शऊर है। ये दोनों अनासिर एक दूसरे के साथ लाजिम व मुलजिम हैं। इन दोनों में से किसी एक की भी कमी नामुकम्मल शख्सियत का बास बन सकती है। तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये इंसान को दुनिया को समझने, अपने मसाइल हल करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इल्म फराहम करती है। ताहम सिर्फ तालीम ही काफ़ी नहीं, अगर किसी शख्स में अखलाकी इक़दार और समाजी जिम्मेदारियों का शऊर न हो तो ये इसके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। तरबियत दूसरी तरफ इंसान को एक अच्छा इंसान बनने में मदद देती है। ये इसे ईमानदार, मेहरबान, हमदर्द और जिम्मेदार बनाती है। तालीम और तरबियत ही नहीं, कामयाब होना भी ज़रूरी है।
कामयाब होना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन कामयाबी का मतलब सिर्फ दौलत, शोहरत या बड़ा ओहदा हासिल करना नहीं। कामयाबी दरअसल अपने मकासद को हासिल करना और बेहतरीन सलाहियतों को निखारना और एक मुतमईन जिंदगी गुजारना है। कामयाबी की सबसे अहम चीज़ मेहनत है। कहा जाता है मेहनत खामोशी से करो और कामयाबी का शोर मचाने दो। बगैर मेहनत के कोई मंजिल हासिल नहीं होती। इसके लिए मुस्तकिल मिजाजी भी बहुत ज़रूरी है। हम कभी नाकामियों से मायूस हो जाते हैं, लेकिन याद रखें जो लोग बड़ी मंजिलों के लिए पैदा होते हैं वो कभी हार नहीं मानते। आखिर में मैं एक शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करूंगी। इल्म और अखलाक से बनती है बात, वरना खाली दर्जे खाली रह जाती है ज़ात। तरबियत के संग तरबियत के साथ जब हो तालीम की रोशनी, कभी संवरता है इंसान, बनती है जिंदगी। शुक्रिया। बहुत अच्छे। इसके बाद आखिरी तकरीर के लिए अनीस सोलकर को मैं आवाज़ देता हूँ कि आए और अपनी तकरीर पेश करें। अनीस शुरू करो। मोहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का मौजू है तालीम और अखलाक की तरबियत, कामयाब ज़िंदगी की कुंजी। इल्म का मकसूद है बाकी अकल व क़िर्द, इल्म का मकसूद है बाकी अकल व क़िर्द, इल्म का हासिल है ज़िंदगी का अदब। तालीम हमें पढ़ना लिखना सिखाती है, ये हमें साइंस, हिसाब, तालीम और ज़ुबानों का इल्म देती है। लेकिन मेरे दोस्तों, तालीम के साथ अखलाक ना हो तो ये इल्म अधूरा रह जाता है, क्योंकि कामयाब ज़िंदगी का मतलब सिर्फ ज़्यादा नंबर या बड़ी नौकरी हासिल करना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने का नाम है। अखलाकी तरबियत हमें ये सिखाती है कि हम बड़ों का अदब करें, छोटों से शफकत करें और दूसरों से हमदर्दी का सलूक करें। तालीम हमें वक्त की पाबंदी करना सिखाती है। तरबियत हमें ईमानदारी और सच्चाई का सबक देती है। अगर कोई शख्स बहुत बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर है मगर वो बदतमीज़ या किसी को धोखा देता है तो क्या हम उसे कामयाब कहेंगे? हरगिज़ नहीं। इल्म से आदमी खुदा बन जाए, वरना इंसान बन सका आखिर। हमारे स्कूल के बानी A.Y. पटेल साहब ने भी इसी बात पर जोर दिया था कि इस स्कूल में तालीम हासिल करने वाला हर एक बच्चा बाकिरदार बने। यही वजह है कि आज हम उनके नाम से ये यौम तालीम मना रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कामयाब हो तो हमें तालीम के साथ साथ अखलाक को भी अपनाना होगा। सच बोलना, बड़ों की इज्जत करना और दूसरों की मदद करना, ये वही सब चीज़ें हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि तालीम और अखलाक का साथ ऐसा है जैसे रोशनी और खुशबू का। अगर दोनों साथ में हो तो ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारा सुबह का सेक्शन ये तकरीर का यहाँ पर ख़त्म होने जा रहा है। मैं आए हुए मेहमानों में से अगर कोई आज के इस मौके पर अपने ख्यालात पेश करना चाहते हैं तो उनको इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ आए हुए सब मेहमान, दोस्त और ये सब स्टूडेंट, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। सब बच्चों ने जो भी तकरीर की, आज की जो भी तकरीर है वो तालीम और तरबियत के ऊपर है। जो भी बच्चे ने जो भी बताया
तो सब सही तरीके से बताया। और मैं यही कहना चाहूँगा, जब तालीम और तरबियत दोनों साथ में रहेंगे तो ही तुम सक्सेस है, तो ही तुम आदमी बन सकते। या एक ही तरीका रहेगा तुम्हारे पास, तालीम रहेगी या तरबियत रहेगी तो तुम इंसान नहीं बन सकते। तुम उतना जो भी तुम्हारे दिल में है, जो बनना है वो नहीं बन सकते। जो भी हमारे फाउंडर थे अली पटेल ने जो भी किया वो उनके पास तालीम और तरबियत दोनों भी चीज़ थी, इसलिए उन्होंने आज तक ये मकाम पाया। और हम उनका दिन जो भी ये मना रहे हैं वो उनने अपने मेहनत से और तकलीफ लेके जो किया, और उनको जो भी तालीम मिली थी और तरबियत मिली थी उसके जरिए उन्होंने ये सब किया। इसीलिए जो भी आज बच्चे लोग ने तालीम और तरबियत में जो भी बातें की, तालीम ये तुम्हारे को स्कूल से मिल सकती है, तुम्हारे को जनाब टीचर ये ही तालीम दे सकते हैं, लेकिन तरबियत ये तुम्हारे को तुम्हारे घर से मिलना मांगता है। और तरबियत जो घर में जिसकी तरबियत अच्छी है, घर में जो अच्छे लोग हैं वो तुम्हारे को जिस तरीके से तुम्हारे को समझाएंगे सिखाएंगे उसी तरीके से तुम तरबियत लेंगे और तुम आदमी आगे जाके आदमी बनेंगे। और दूसरी बात है, तालीम ये जो है ये थ्योरी है, जो सीखते हैं तुम लोग, जो बुक में सीखते हैं, किताब में सीखते हैं या बुक में लिखते हैं, ये एक थ्योरी का हिसाब है। और उसके साथ में तरबियत या प्रैक्टिकल ज्यादा करके तुम्हारे को तुम्हारे घर से लेना है, तुम्हारे घर में सीखना है। और जो भी घर में तुम्हारे सच्चे और अच्छे घर वाले रहेंगे तो तुम्हारे को तरबियत अच्छी मिलेगी, और आगे चल के तुम दोनों चीज एक साथ में लेके चलेंगे तो तुम्हारे को आगे चल के आदमी बनना, कैसा बनना, क्या बनना, ये सब समझ में आएगा। और जो भी करना है वो दोनों भी चीज लेके चलना है तुम्हारे को। एक चीज लेके चलेंगे तो बोले ना, जैसा कि अंधेरा, एक चीज लेके चलेंगे तो तुम अंधेरे में जाएंगे कौन से भी साइड में, तो वो चीज उसका दूसरा चीज नहीं रहेगा तो तुम्हारे को आगे बढ़ने का कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए सब बच्चे लोग ने तय करना कि हमारे को तालीम भी लेना है और उसी तरीके से तरबियत भी सीखना है। तरबियत से दोनों भी चीज रहेगी तो तुम आगे चल के सक्सेस बन जाएंगे। बस इतना ही बोल के मैं मेरा भाषण बंद करता हूँ। इसके बाद हमारे मेहमान मोहतरम जनाब अब्दुल हमीशा पटेल अपने ख्यालात पेश करेंगे। आपके जलसों के कहा आए हुए मेहमान और सभी मोहतरम दोस्तों, आज बड़ी खुशी का मुकाम है कि आज इस खुशी के मौके पर इस स्कूल को जिसने कामयाब बनाया, इस स्कूल के लिए जिसने जद्दोजहद की, उसकी यादगार में ये जलसा मनाया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है और ये हमारा हक है, क्योंकि उन्होंने इस स्कूल के लिए बहुत सारी कोशिश की है, जिसकी वजह से ये हमारी स्कूल जो है आज 10वीं तक पहुंची। इससे पहले स्कूल जो थी 7वीं तक थी और बच्चे भी कम थे और स्कूल जो है एकदम आहिस्ता आहिस्ता बंद होने के कगार पे थी। लेकिन हमारे गांव के और कुछ नौजवान आगे बढ़े, उन्होंने समझा कि भाई उर्दू स्कूल को भी आगे बढ़ाना है, उर्दू तालीम को भी आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने भी जद्दोजहद की और ये स्कूल आज हमको जो है 10वीं तक नजर आ रही है। हर इंसान को इसकी फिक्र चाहिए, क्या 10वीं स्कूल होकर बहुत साल 10वीं तक ही है। एक इंसान ने कोशिश करके 7वीं से 10वीं बनाया, तो हमको भी इसका सबक लेना चाहिए। और ये जो स्कूल 7वीं से लेकर 10वीं तक हुई है, तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम सब नौजवान मिलकर इसको कॉलेज बनाएं। कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम जो है मस्तूरा लड़कियों का कॉलेज बने। आज देखते हैं हमारी लड़कियां दूसरे स्कूलों में कॉलेजों में जाती है तो उनके ऊपर कितना बोधरेशन रहता है। उनको जो है अपने दीन के ऊपर चलना और अपने कल्चर को लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है।
तो आज क्या मुसलमानों के पास पैसा नहीं है, ऐसी बात नहीं। मुसलमान चाहे तो ऐसे 10 स्कूलें बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और ये स्कूल को 10वीं है, इसको कॉलेज तक बनाने की जद्दोजहद करना पड़ेगी। जब तक हम जद्दोजहद नहीं करेंगे हम आगे बढ़ नहीं सकते। किसी ने फरमाया कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आपने हालतें बदल ली। अगर हम ही नहीं चाहेंगे कि हम आगे बढ़े तो मोहतरम दोस्तों अल्लाह ताला भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर इंसान जब चाहता है, दिल में इरादा करता है, अब किसी ने इरादा किया कि मैं 2 रकात जाके मस्जिद में नमाज अदा करूंगा, तो अल्लाह उसको हिदायत देंगे। किसी ने चाहा कि मैं नेक काम करूंगा, तो अल्लाह उसको हिदायत देंगे। लेकिन कहते हैं कि हम इसको जो है दिल में इसको इरादा करें और हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि जो हमारी स्कूल आज नजर आ रही है और जिसने इसको फरोग दिया, जद्दोजहद की और उसके याद में हम ये जलसा मना रहे हैं, हम ये ख्याल करते हुए ये मतलब इरादा करके जाएं कि हम इस स्कूल को आगे भी बढ़ाएं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस मौके पर आए हुए तमाम मेहमानों का मैं बहुत तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अभी आखिरी इख्तिताम पर मैं मौलाना शराफत अली बरकाती के साथ दरखास्त करता हूँ अपने ख्यालात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तकरीर के लिए मैडम का और तमाम असातिज़ा किराम का कि उन्होंने मुझे मुमतहिन बना करके मेरी हौसला अफजाई किए हैं और बच्चों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिनके अंदर जो काबिलियत थी उसी हिसाब से मैंने नंबर दिया है। और अगर किसी बच्चे को अगर नंबर कम मिला है तो नाराज ना हो, आगे मेहनत करनी है। और बच्चों ने तो मेहनत बड़ी करके आए हैं यहाँ पे, ये दिखती हुई बात है, लेकिन अवाम नास के सामने में बोलना ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोग बोल करके क्या हो गया, हमको हैबिट हो गई है, सबको हैबिट हो गई है। बच्चियों ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो फिर कल चल के आपको कामयाबी मिलेगी। एक चूटी चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, आखिर में वो क्या है कि अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। हौसला बड़ी चीज है, मेहनत बड़ी चीज है। यहाँ आप लोगों को सिखाया जा रहा है और जो भी आप लोगों को इनाम दिया जाएगा उसको निशानी के तौर पे उसको रखना है। हमको भी उस वक्त में मदरसे में जो इनाम दिया गया था, जो बुक हमारे ज़माने में किताबें दी जाती थी, आपके ज़माने में अलग अलग चीज़ें दी जाती है, ये बड़ी बात है। हम मुताला करते थे, मुफ्ती साहब की बिला जब मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा होते थे तो इरशाद फरमाते थे कि इसको अपने मदरसे के लिए, याददाश्त के लिए आप लोग रखिए। अभी भी मेरे पास में वो किताबें हैं, जब भी निकालता हूँ तो मादरे इल्म का मुझे याद आता है, वो मदरसे का हमें मुझे याद आती है। और अपने उन तलबाए कराम जो हम साथ मिल करके, कभी मैं क्या होता था, मुझे कामयाबी नहीं मिलती थी, उनको कामयाबी मिलती थी, कभी उनको कामयाबी नहीं मिलती थी, मुझे कामयाबी मिलती थी, तो वो यादें अभी भी हमारे मेरे क्या है कि दिल में है। बच्चों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आगे जो भी आप क्या है कि इम्तिहान में हिस्सा लेंगे तो और मेहनत करके आप लोग आए, अल्लाह आपको कामयाबी दे, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। जिस तरीके से मुझे क्या है कि नंबर देना था मैं दे दिया हूँ, अगर किसी को इनाम नहीं मिल पाएगा तो माजरत चाहता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। वो माइलेना अलबला। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अभी भी मौलाना साहब ने आपके सामने अपने ख्यालात पेश किए हैं कि किसी को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है और कोई परेशान भी ना हो कि तकरीर में और नात में जिन तलबात तालिबात के यहाँ पर नंबर आए हुए हैं उनको तो इनाम ज़रूर मिलेगा, जिनका नहीं आया है तो वो नाराज़ ना हो कि आगे उनकी कामयाबी चलती रहेगी, आगे उनको मौका मिलता रहेगा और वो भी आगे इसी तरह अगर मेहनत करेंगे तो आज नंबर नहीं तो कल तो हमारा ज़रूर आएगा। तो खैर इंशाअल्लाह
आज का ये प्रोग्राम सुबह का सेशन का ये तकरीर और नाच का प्रोग्राम मैं जलते साहब की इजाज़त से यहीं पर ख़त्म होता है। तो इसका आगे का प्रोग्राम है कैरम और चेस और जूडो का। अभी सिर्फ हम कैरम खेल का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद बच्चे उनके मैचेस चलते रहेंगे। दोपहर के बाद फिर से क्विज का कंपटीशन है, तो दोपहर के बाद अगर मेहमान आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बैठे हुए मेहमान हैं उनसे सिर्फ मौजूदाना गुजारिश है कि दोपहर में नमाज के बाद खाना खाने के लिए आए। सिर्फ बसणारे माणसांना उभे राहण्याला कैंसिल। जोहर की नमाज के बाद इंशाल्लाह खाने का इंतजाम किया गया। तभी हम आपके हाथों से कैरम का यहाँ पर एक उद्घाटन करने जा रहे हैं। लाइक